Hello students, last time we discussed about chapter number 1 sets. उसमें एक्सरसाइज 1.2 देखा था और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखा था. टुडे we discuss about chapter number 1 exercise 1.2 question number 5. Question number 5 is what? Question number 5 is here. Question number 5 is are the following pair of are the following pair of are the following pair of sets equal give the reason. ओके, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो भी पेयर नीचे पड़ी है वो सेट्स इक्वल सेट है या नहीं. गिव द रीजन. अगर है तो उसका कारण क्या है. उसमें से फर्स्ट है नंबर 1 a इज इक्वल टू 2 3 a इज इक्वल टू 2 3 एंड b इज इक्वल टू x where x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. ठीक है. अब ये दोनों पेयर इक्वल सेट है कि नहीं वो कैसे मालूम पड़ेगा. तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि a सेट और b सेट इक्वल कब होंगे. जब उसके एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स सेट ऑफ a और एवरी एलिमेंट सेट ऑफ b के दोनों इक्वल होंगे तो ही a और b सेट बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पर a सेट इज इक्वल टू 2 3 पड़ा है, उसको रहने दो. b सेट जो है उसका सॉल्यूशन निकालो. इसका सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का. तो हम सॉल्यूशन करें b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो हम सॉल्व करें x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब सॉल्यूशन कैसे होगा. इन द 10th स्टैंडर्ड यू नो दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन and how to solve this quadratic equation. 6 1s are 6 and middle term is 5x, so 3 2s are 6, so 3x plus 2x. 6 1s are 6, so x square plus 3x plus 2x plus 6 is equal to 0. Okay, now next step is what? X is common and in bracket x plus 3 plus 2 in bracket x plus 3 is equal to 0. Okay, वो सेट चल रहा है. सो ऐसे इंप्लाइज की साइन करेंगे. x plus 3 is equal to 0, x plus 3 is equal to 0 and next is x plus 2 is equal to 0. So we can say that x equal to minus 3 and x equal to minus 2. So what is the answer of x? X equal to minus 3 and x equal to minus 2. This is the solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. So b का आंसर जो आएगा वो आएगा minus 3 and minus 2. अब बाद में देखो कौन सा क्या देखना है. a is equal to 2 3 and b is equal to minus 3 minus 2. So these sets are equal or not? So these sets are not equal because क्या होगा. because में हम लिखेंगे कि every element set of a set of a is not equal to every element set of b. Clear? Now we can say that set of a is not equal to set of b. So here question number first is what? Following pair of sets are equal. तो फर्स्ट में a और b इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे
every element set of A is not equal to every element set of B. नेक्स्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. Let's question number 5 is second question is what? Second question, A is equal to x where x, A is equal to x where x is a letter in the word follow, FOLLOW, bracket is closed, and y is a letter in the, and B is equal to y where y is a letter in the word WOLF. Clear? WOLF. Now how to start this example या तो sum. A is equal to x where x is a letter in the word FOLLOW, and second B is equal to y where y is a letter in the word of WOLF. So we know that A is equal to जो भी इंग्लिश वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड को हम बार बार रिपीट नहीं करते, ठीक है. तो उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले W को लिखेंगे, उसके बाद O को लिखेंगे, उसके बाद L को लिखेंगे, उसके बाद F, और बार बार जो आ रहा है वर्ड जैसे कि O सेकंड टाइम आ रहा है सो रिपीट नहीं होगा, L भी सेकंड टाइम आ रहा है वो भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है. तो WOLF. B is equal to पढ़ा है WOLF. तो now we can say that WOLF every element set of A to set of B, यानी कि both element जो भी है वो सेम है. तो हम लिखेंगे both sets are equal, because every element set of A is equal to every element set of B. Now we can say that A is equal to B. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. Let's question number 6 is what? Question number 6 is from the sets given below. From the sets given below, select equal set. Select equal sets. अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए सेट्स को देखना है और देख ले बताना है कि सिलेक्ट इक्वल सेट, उसमें से सिलेक्ट करना है इक्वल सेट जो भी बन रहा है उसमें से. क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पढ़ा है वो सेट है A is equal to 2 4 6 8 2 4 8 और 12. B सेट जो है वो 1 2 3 4 and C is equal to 4 8 12 40 और D is equal to पढ़ा है 3 1 4 2. E is equal to है -1 1. E is equal to -1 and 1, and F पड़ा है 0 A F, and G is equal to क्या लिखा है 1 - 1 and -1, and H is equal to लास्ट है H is equal to 0 1. क्लियर. यहाँ पर बहुत सारे सेट है A B C D E F G and H.
सभी सेट्स को देखना है और देखने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि वो इक्वल सेट कौन कौन सी जोड़ी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट देखें 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 यहाँ पर कोई है, देख लो एक बार, नहीं है, तो 2 4 8 12 यहाँ पर कोई नहीं है, तो ए सेट को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है b = 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दूसरे कोई सेट में पड़ा है, देख लो। यस, यू नो दैट b = 1 2 3 4 एंड d = 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 या तो 1 2 3 4 भी बोल सकते हो, तो हम लिख सकते हैं b = d। आंसर इज b = d, एक पेयर बन गए सेट से b = d। नेक्स्ट है c = 4 8 12 14, इसमें से देखो कि 4 8 12 14 पढ़ा है, नहीं पढ़ा, तो दिस इज कैंसल। ओके, d तो आ गया, e -1 1 देखो, तो -1 1 यहाँ पर लिखा है, -1 और 1 भी है, तो e = c, तो our answer is e = c। so we can say that two sets b = d and e = c is equal set। आगे देखो तो h = 0 1 0 a भी नहीं है, तो वो सब इक्वल सेट नहीं है, दो ही पेयर इक्वल सेट बनेगी, कौन से, b = d एंड e = c। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम आगे के टॉपिक के बारे में, सबसेट। Our next topic is subsets, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट्स की बात करें तो उसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में ऐसा है कि कोई एक स्कूल है, बड़ी सी स्कूल, जैसे कि हम गुरुकुल विद्या विहार में पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्कूल में, ठीक है। तो पूरी इंग्लिश स्कूल जो है वो इंग्लिश स्कूल वो आपका सबसेट है, और उसके अंदर जो आप पढ़ रहे हो 11 साइंस इंग्लिश मीडियम में, वो आप एलिमेंट हो या तो कोई सेट हो, ठीक है। तो पूरी स्कूल है, वो स्कूल कौन क्या बन रही है, सबसेट बन रही है। आपने 9th या तो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। वही बात 11 साइंस में आ रही है। तो सबसेट बेस के पूरी जो गुरुकुल स्कूल है वो सबसेट है, किसके सबसेट होगी, तो अवर स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो हम ऐसे डेफिनेशन में लिखेंगे, डेफिनेशन के बारे में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इफ एवरी एलिमेंट्स set of A to B is called subset of A, subset of A to B is subset of B। बोलेंगे अगर मैं दूसरी तरीके से डेफिनेशन लिखूं, if every element set of B to A is called subset of B subset of A, ऐसे आप डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसेट कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे साइन है, तो इसको बोलेंगे E सबसेट ऑफ B। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, B इज सबसेट ऑफ A। फॉर एग्जांपल सबसेट ऑफ B सबसेट ऑफ A या तो A सबसेट ऑफ B का, ठीक है। तो सपोज A इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 2 3 एंड 4, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 1 2 ओनली, ठीक है। तो आप इसको क्या रिप्रेजेंट करोगे, A सबसेट ऑफ B है या B सबसेट ऑफ A है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो एवरी एलिमेंट देखो, एवरी एलिमेंट 1 2 पड़ा है, ये 1 2 यहां पर भी है, तो B सेट इज सबसेट ऑफ A, तो A इज सबसेट ऑफ B, ऐसा बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B बिकॉज़ A के सभी एलिमेंट B में है या तो B के सभी एलिमेंट A में होने चाहिए। तो यहाँ पर उल्टा है, सॉरी ये नहीं लिख सकते हम, यहाँ पर उल्टा है B सबसेट ऑफ A, तो B A का सबसेट है, ठीक है। B के सभी एलिमेंट A में पड़े हैं, 1 2 3 4 में पड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 5 एंड B इज इक्वल टू 1 3 5 7 1 3 5 7
तो 1 5 किसमें पड़ा है 1 3 5 7, तो ए के सभी एलिमेंट बी में है, तो इसको बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कौन सा सबसेट बड़ा बी पूरा है, यहाँ पर ए पूरा है, ठीक है। तो ये सबसेट की बात हो गई। तो सबसेट किसको बोलेंगे फिर से देख लीजिए यहाँ पर, इफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ ए टू बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। एंड नेक्स्ट है अलग तरीके से डेफिनेशन है दूसरी तरीके से, इफ एवरी एलिमेंट सेट ऑफ बी टू ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव बात है, नेगेटिव बात कौन सी, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के सभी एलिमेंट अगर बी में नहीं है तो आप लिख सकते हो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसे डिनोट करेंगे या तो ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ कोई सम में कि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है या तो बी में पड़े नहीं है, तो आप बोलेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, या तो ऐसा भी लिख सकते हो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। इसको कैसे बोलेंगे, बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे सबसेट की, ठीक है, और सबसेट में आगे चर्चा करेंगे पावर सेट की। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट अ कलेक्शन, डेफिनेशन लिखते हैं तो कलेक्शन ऑफ set of subset of subsets of set A is called power set, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन से समझते हैं कि a collection of subset of set A, तो A के जितने भी एलिमेंट है उसके सबसेट बनाएंगे और जितने भी सबसेट बनेंगे उसका होगा पावर सेट, उसका कलेक्शन होगा, वो कलेक्शन बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट इज डिनोटेड बाय 2:n। फॉर्म कैसा होगा 2:n। सपोज यहां पर मैं लिख रहा हूं a is equal to 1 2, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पर, फाइंड द पावर सेट ऑफ a, फाइंड द पावर सेट ऑफ a। तो यहां पर a सेट है 1 2, फाइंड द पावर सेट ऑफ a, तो a का पावर सेट हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड होगा, तो हम पहले लिखेंगे a is equal to 2:n टाइप का फॉर्म है, तो 2:n इज क्या, तो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर 2 है तो 2 लिखेंगे। तो हमारा जो पावर सेट है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 4, और 4 में उसका सबसेट कितना होगा, तो एक तो 5 आएगा, 5 कंपलसरी आएगा, देखो ठीक है, 5 कंपलसरी कोई भी सम में आएगा। उसके बाद 1 आएगा 1, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 1 2 पूरा सेट आएगा, ठीक है। तो 4 नंबर आ गया यहाँ पर, तो 4 हमारे पास होने चाहिए सबसेट, ठीक है। तो 5 आएगा 1 आएगा 2 आएगा और 1 2 आएगा। उसी तरह ऐसा भी लिख सकते हो a is equal to 1 2 3 और फाइंड द पावर सेट ऑफ a। तो उसमें क्या होगा 2:n, यानी 2:n की जगह क्या होगा, यहाँ पर 2 की जगह क्या होगा 3, तो 2 क्यूब यानी कि यहाँ पर 8 आंसर मिलेंगे, तो 8 सबसेट मिलेंगे आपको। 8 में क्या कौन सा 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा 5 मिलेगा, उसके बाद 1 2, ठीक है 1 3, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 1, ठीक। उसी तरह 1 2 3 और सब कैलकुलेट करोगे तो आपको 8 तक आपको पावर सेट मिल जाएगा। तो उसी तरह पावर सेट की बात है, तो इसी पावर सेट में हम कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरवल, उसमें टाइप्स ऑफ इंटरवल है। तो इंटरवल में क्लोज इंटरवल है, उसके बाद ओपन इंटरवल है, क्लोज ओपन इंटरवल है, ठीक है, ओपन क्लोज इंटरवल है, उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटरवल। व्हाट इज द इंटरवल? तो देयर आर 4 टाइप्स
interval. There are 4 types of the interval. Like one, closed interval. Like two, second number, open interval. Closed interval, open interval. थर्ड नंबर में क्लोज ओपन इंटरवल, और लास्ट में फोर्थ नंबर में है ओपन क्लोज इंटरवल। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि क्लोज इंटरवल किसको बोलेंगे, ओपन इंटरवल किसको बोलेंगे, क्लोज ओपन इंटरवल किसको बोलेंगे, और ओपन क्लोज इंटरवल किसको बोलेंगे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट में क्लोज इंटरवल की, ठीक है। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में सपोज मैं एक लाइन है यहाँ पर दो कंडीशन बता देता हूँ ए एंड बी, उसमें सेट लिखता हूँ e इज इक्वल टू x वेयर x इज e लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, ये कंडीशन की है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a और b में पड़ा है आंसर, तो a और b में आंसर है, तो इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल, यानी कि ये डार्क पॉइंट है, तो डार्क पॉइंट में हम इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। तो x की वैल्यू क्लोज इंटरवल में कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल में a b ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर से देखो, एक लाइन में क्लोज इंटरवल को बताना है x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू बोथ साइड, तो क्लोज इंटरवल में a b, यानी कि a और b दोनों आंसर x के रहेंगे। उसके बाद सेकंड है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में हम बात करें एक लाइन में, ओपन इंटरवल में एक a है, यहाँ पर एक b है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो डार्क पॉइंट नहीं है, यहाँ पर कंडीशन बताना है e इज इक्वल टू x वेयर x इज e लेस देन x लेस देन b। तो यहाँ पर x की वैल्यू a और b में भी नहीं होगी, तो इसको ओपन इंटरवल में बताएंगे e, ठीक है, वो ध्यान रखना। और उसके बाद ओपन क्लोज ओपन इंटरवल में क्या है, तो क्लोज ओपन इंटरवल में यहाँ पर एक लाइन बताएंगे, क्लोज है तो a आंसर आएगा, b नहीं आएगा, तो इसमें लाइन के हिसाब से दिखाना है, तो इसे बताएंगे, ठीक है। तो आगे लिखेंगे, यहाँ पर a सेट कंडीशन लिखेंगे x वेयर x इज a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन b। तो यहाँ पर जो x का आंसर मिलेगा वो ओनली a ही मिलेगा, तो यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल में बताना है, तो a b और एक इंटरवल होगा ओपन, यहाँ पर एक इंटरवल क्लोज होगा, यहाँ पर एक इंटरवल ओपन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा ओपन क्लोज इंटरवल। तो ओपन क्लोज इंटरवल में क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो एक लाइन में ओपन, यानी कि e का आंसर नहीं होगा, b में आंसर होगा, ठीक है। और सेट a में हम कंडीशन लिखेंगे सेट a इज इक्वल टू x वेयर x इज a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b, ठीक है। तो a लेस देन x लेस देन और इक्वल टू b में ओपन क्लोज इंटरवल लिखना है, तो a में आंसर है, b में आंसर है, तो इसको क्लोज इंटरवल में बताएंगे। तो उसी तरह टाइप्स ऑफ फॉर इंटरवल है, तो फॉर इंटरवल में फर्स्ट है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल है, उसके बारे में अलग-अलग बात की है, ठीक है। क्लोज इंटरवल में ये कंडीशन, ओपन इंटरवल में ये कंडीशन होनी चाहिए, क्लोज ओपन में ये क्लोज एक ओपन, और ओपन क्लोज में एक ओपन होगा एक क्लोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट सम के बारे में। थैंक यू।